my friend Vaidikji. Just now I had a very, very interesting conversation in this hall. And this set me thinking. And I'm trying to just take you back and take you also forward. Because I am one of those who also believes in the history of the future. You narrated the history of the present. I will take you back to the past and I also will take you forward to the future. In very brief, just to sensitize. This question about the concern for the present and the future was posed to Rabindranath Tagore. He said, we have to get back to the past. And he said, I love India, not because India is my country, I love its geography, but I love this country because gentlemen, men of this country and women of this country have been able to reproduce the sacred words that our sages and seers said in a state of illuminated consciousness. What were those things? He was mentioning about the Shruti tradition and the Smriti tradition. What were those? It traveled from father to the son, from guru to the shishya, and at each stage there was a dialogue. So I am taking you to the pre-printing stage. And they were great minds. Otherwise, how will you have the Vedas, the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, the Puranas in print? Then you come to the print age, the fusion of technology and literature. Then you go forward and you talked about that forward move, and that was cinema. When the visuals came, the technology came. But in between this long period of history, we had a very unique movement in this country, which is unparalleled in the world civilization. Cinema is not unparalleled. Cinemas are being made all over. The unparalleled movement was Bhakti movement that lasted for 1,000 years. It began from the 7th century and it continued till all these things came. Technology changed. So this is also a history of change of technology and it's intermingling with literature, shaping new ideas, giving new expressions. I'll tell you one story. I was very keen as culture secretary to do things which have not been done in the past. I will only give you one example. I was told that Indonesia does not want to renew their cultural ties with India, and that has persisted for many, many years. So my friend, my batchmate in fact, Devre was the High Commissioner there, so I said I want to come and persuade. So I had sent the cultural agreement draft, I had called the ambassador, and he had recommended. So it went there. It was approved, fortunately. Because Indonesia was impressed with the way we celebrated 50 years of India's independence. I was then the culture secretary.
So I went there. So he said, now the orders are that the Honorable Minister in charge of science, technology, communications, blah blah, who was a dear minister under the President Suharto, they registered in his room and we have to go there. This minister is very arrogant intellectually, he is very bright and very arrogant. Many intellectuals become very arrogant. Then you know what happened. So I said, what is the problem? So he went, we were received by an officer and we were taken his room. He said, he will not get out, even for foreigners. I said, how am I bothered? I have met many rude ministers and leaders in the past. There is no problem. So I went there, I sat. And he didn't take me to the sofa. You know that, those small things. So I started the conversation. He was very stiff, so I know how to break the conversation. I said, do you know, Mr. Minister, that 2 boys from Orissa fled away by boats to Java and Bali and gave you bhasa? He said, I have not heard. I said, I have not also, I can't identify, I have tried. I have given a fellowship of 10 lakh rupees, but that family is not being identified, that school has been identified, it is not there. So it broke. Then he became normal. Then when the tea came, he said, let's go through the sofa. I said, okay, there is a change. See the influence of culture. So we sat. Then he tells me that, look, I have a problem. Problem is the Hindi cinema. I'm coming to the conversation. I said, what is the problem? He said, no, do you know, if Amitabh Bachchan comes here in Jakarta, I will not be able to control the crowd. All these Hindi films, so the cabinet has asked me to frame a law, give a paper for banning Hindi films. I said, Honorable Minister, the ambassador can't give you the answer because he doesn't have a brief. You looked at him. But I can give you the answer because I have no brief. So he laughed. And then he said that my friend told me that the first time he laughed. He was very stiff fellow, very bright. I know that it ends now, and I am also there. So I am telling you that the minister said, what is your advice? I said, your forefathers have reinterpreted Ramayana and the Mahabharata, and we are having paintings of your country. A time will come when your people will take Bollywood films forward and give a better view. Then the ice melted. I went to sign the register. The earlier register was signed by Jawaharlal Nehru and Sukarno. And then I signed and that gentleman signed. And then he came down to see me off in the car. What I'm trying to tell you is that you think of change in technology and think about the history of the future. New things will happen. And this children of the millennial have to be ready for that. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं विनीता जी का बहुत आभारी हूँ। पिछले 30-40 साल से रेगिस्तान में घूमने की आदत थी, नेताओं का सत्संग या कुशन दिन भर। वर्षों बाद नहीं वो बोल रहा कि दिन रात नेताओं का कुशन, दिन रात अखबार पढ़ना, 20-25 अखबार रोज आते हैं, रोज लिखना। शायद 150-200 साल में शायद ही कोई जर्नलिस्ट ऐसा होगा जो रोज लिखता हो और रोज 100-200 अखबारों में छपता हो, देश में और विदेश में। उस रेगिस्तान से निकल के आज लग रहा है कि मैं साहित्य की बगिया में आ गया। इतना आनंद है, इतने अच्छे डिस्कशन सुने, वाल्मीकि जी का इतना अच्छा भाषण अभी सुना। मैं विनीता जी का बहुत आभारी हूँ।
इतवार का दिन था, प्रायः नहीं जाता हूँ कहीं, लेकिन पता नहीं क्या बात है इनमें कि ये जैसा कि वाल्मीकि जी कह रहे थे कि खींच लिया, मैंने बुलाया तो मैं ना कर सकता। तो बहुत आनंद है। एक एक मिनट में सारी बात मैं कहता हूँ। मेरे भाव में परमाणु बम से ज्यादा ताकत विचार में। विचार की जितनी ताकत परमाणु बम में भी है। और विचार का खजाना क्या है? साहित्य, पांडित्य, विद्वत्ता है। और कुर्सी टिकती है अपने यहाँ तो 5 साल, कभी कभी 10 साल 15 साल पे टिक जाती है, लेकिन विचार टिकता है सदियों। जैसा कि वाल्मीकि जी ने अभी कहा, वेदों के जो मंत्र हैं, उपनिषदों की जो कथाएं, गीता के जो श्लोक हैं, दर्शन शास्त्र के जो सूत्र हैं, वो कई बार ऐसा जबरदस्त टेका लगाती है। आदमी जब फिसल रहा हो, गिर रहा हो, परेशान हो, एक मंत्र आपने जान डाला। अभी मेरी हजारों किताबें मैंने इंदिरा गांधी कला केंद्र को दे दी, लेकिन कुछ उपनिषद के भाष्य जो मेरे पास थे वो बचा के रखे, गालिब का दीवान बचा के रखा, मीर पर भी 28,000 शेर हैं, उसमें से बहुत सारे शेर मेरे पास हैं, वो बचा के रखे। कुछ और चीज़ें बचा के रखी, 10-20 किताबें मुझे। क्यों बचा के रखी? कि वो जो सहारा मुझे दे सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते। जो सहारा वो मुझे विचार दे सकते हैं, वो कोई टाटा, बिरला, अंबानी भी नहीं दे सकता। तो साहित्य का ये महत्व है। और अभी भाषा के बारे में कहा, उर्दू और हिंदी के बारे में 1983 में, नहीं 1983 में कराची में जिन्ना साहब को मुझे बोलने का मौका हुआ, जिन्ना एकेडमी में 3 घंटे 2 घंटे भाषण चला, 1 घंटे क्वेश्चन आंसर। सबसे आखिर में प्रोफेसर ने खड़े होकर कहा कि इतनी देर से आप उर्दू में बोल रहे थे, मुझे थोड़ा हिंदी बोल के तो सुनाइए। तो उसका जवाब वही है जो इन्होंने दिया कि हिंदी और उर्दू में कोई फर्क ही नहीं। और जब जुबान बोली हुई होती है और लिखी हुई होती है, मैं समझता हूँ बोली हुई जुबान का ज़्यादा असर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहा गया है, सुनी हुई बात। और हिटलर ने इनके शुरू इस बात से की है कि जितनी क्रांतियाँ हुई, जितने इनकलाब हुए दुनिया भर में, वो लिखे हुए शब्द से नहीं हुए हैं, बोले हुए शब्द से। और बोला हुआ शब्द ही सिनेमा है। सिनेमा के बारे में और साहित्य के बारे में अब समय नहीं मिलता है। बीच में एक दिन आमिर खान ने मुझे खाने पर घर बुलाया, तो मुझे उसका नाम ही ठीक से याद नहीं था। फिल्में देखता नहीं हूँ। वो सलीम खान जी हमारे दोस्त हैं इंदौर के, जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे मोहल्ले के वो भी हैं। तो मुझे अक्सर बुला के खाना वाना खिलाते मुंबई जाता हूँ। तो एक दिन उनका लड़का आया, कहने लगा पापा हमारे नहा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जरा तशरीफ रखिए, बैठिए। तो उनका आप कौन है? तो मेरी तरफ मैंने कहा आप, तो बोले आप मुझे नहीं जानते? मैं कह नहीं था। कौन है? मैं इनका बेटा हूँ, सलमान खान। अच्छा, उनका वो सिनेमा में जो काम करते हैं वो सलमान खान है। और मुझे बाद में बड़ा शर्म आई कि मैं इतना बुद्धू हूँ कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि सलमान खान है। तो साहित्य का ये आनंद है। और साहित्य इतनी गजब की चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने छोटी उम्र में बहुत जेल गया। पहली बार मेरी उम्र 12-13 साल की थी जब मैं जेल में गया। उसके बाद कई बार इंदौर में जब रहा, मध्य प्रदेश में, हर साल जेल जाता था। तो जेल में फिलॉसफी की, पॉलिटिकल साइंस की किताबें नहीं होती थी, सब उपन्यास होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सारे उपन्यास पढ़ डाले, शरदचंद्र के सारे उपन्यास पढ़ डाले, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जो हाथ में आया। रोज सुबह उठना, कसरत करना पहले खूब डट के, और फिर उपन्यास पढ़ना दिन भर। तो रोज एक उपन्यास में ख़त्म करता था, रोज कविता की एक किताब खत्म करता था। जब भी जेल गया, दिल्ली आके भी 1-2 बार जेल गया, यहाँ भी यही करता था, किताबें पढ़ता। लेकिन अब आप जेल भिजवा दें मुझे, फिर मैं साहित्य पढ़ूँ, क्योंकि जेल में फिलॉसफी किताबें होती हैं। मैं बेसिकली फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ता भी रहा, पढ़ाता भी रहा। दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया। और भाषा के सवाल पे आखिरी बात है, ख़त्म करता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत समय कम है। भाषा के सवाल पर मुझे ये कहना है कि मैं कोई अंग्रेज़ी का विरोधी नहीं हूँ। और मैं तो फारसी मैंने सीखी, रशियन मैंने सीखी, जर्मन मैंने सीखी,
संस्कृत में सारे भारत में कई बार मुझे गोल्ड मेडल मिला है। 10 साल की उम्र में सारे भारत में प्रारंभिक परीक्षा में सर्वप्रथम मैं रहा हूँ। और इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में, इन सब देशों में मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है। लेकिन आप सबसे मैं आज दरख्वास्त करता हूँ, पहली मेरी आपसे मांग ये है, कालिदास ने एक जगह कहा है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ विफल हो जाता है, यज्ञ विफल हो जाता है। पंडित को दक्षिणा नहीं दे तो यज्ञ का लाभ नहीं होता है। तो मेरी दक्षिणा आज आपसे मांगता हूँ, आप सब लोग, आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो बैंक में अपना दस्तखत हिंदी में करता है। कोई भी नहीं करता है, करता है क्या? कोई नहीं। आप सबसे दक्षिणा मांगता हूँ कि अच्छा आप हैं, वाह वाह वाह, धन्यवाद। आप सबसे दक्षिणा मांगता हूँ कि कम से कम अपना दस्तखत अपनी भाषा में, हिंदी का आग्रह नहीं है, उर्दू में करना उर्दू में कीजिए, तमिल में करना है तमिल में कीजिए, अपना दस्तखत हिंदी में करना शुरू कीजिए। दूसरा कि साहित्य का मतलब क्या है, सबको सहित लेके चलना। साहित्य का मतलब ये है, लिटरेचर तो बहुत सीमित है, जो लिटरेट लोग हैं। साहित्य तो इलिटरेट लोगों के लिए है। आप मॉरिशस जाएं, सुरीनाम जाएं, गयाना जाएं, जो बिल्कुल इलिटरेट है, एक शब्द नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल इलिटरेट कहते हैं वो भी साहित्य के पंडित हैं, उनको रामचरितमानस पूरा कंठस्थ है। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर आप अपने आप को साहित्य का प्रेमी समझते हैं तो जो इस देश की भाषाएं हैं उनको पूरा महत्व दीजिए। मैं अंग्रेजी पढ़ने का, पढ़ाने का विरोधी नहीं हूँ, विदेशी भाषाएं खूब पढ़ना चाहिए। मेरी बेटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, वाशिंगटन डीसी में पढ़ाती रही है, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाने जाती है, कई भाषाएं वो जानती हैं। मुझे बहुत आनंद है भाषाओं का। लेकिन अगर अपनी भाषा छोड़ देंगे आप तो आप साहित्य से बहुत दूर हो जाएंगे। किताबें छपती हैं, 1000-1500 आजकल छपती हैं, 200-300 बिकती हैं, बाकी थोक में लाइब्रेरीज के अंदर चली जा रही है। लोग कटते जा रहे हैं, समाज हो रहा है साहित्य से कटता जा रहा है। समाज को साहित्य से जोड़ना है। अपनी भाषाओं में अगर साहित्य लिखा जाए तो लोग याद भी रखेंगे। अभी अंग्रेजी में किताबें छपती हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, उनको लोग जानते थे। कि सुब्रमण्यम का नाम आपने सुना होगा, जिनके लड़के फॉरेन सेक्रेटरी थे, जयशंकर। सुब्रमण्यम जी और मैं एक बार फॉरेन अफेयर्स में बोलने के लिए पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एनुअल मीट में गए हम दोनों। तो मुझे ग्वालियर में थी, तो उतरते से लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कैसे कौन है? अरे उनका सुब्रमण्यम, इनका नाम मैं बोलता हूँ तो पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक को पसीना छूटू। जब पाकिस्तान में गया तो पूछे ये सुब्रमण्यम, मैंने गालियाँ दे के बोले उनको, बोले कौन है, साउथ इंडियन में क्या कौन? उस सुब्रमण्यम जी को, जो इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे हमारे देश में, लोग जानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम अपनी भाषाओं में काम करेंगे तो करोड़ों लोग, करोड़ों, लाखों लाखों करोड़ों लोगों को हम जगा सकेंगे, उनको आनंद की अनुभूति करा सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि साहित्य क्या है, साहित्य ब्रह्मानंद सहोदर, बिल्कुल ब्रह्मानंद का भाई है, सहोदर है। तो वो आनंद अगर हमें अपने देश में और पड़ोसी देशों में देना है और सारे पड़ोसी देशों को आपस में जोड़ना है, आर्यावर्त को जोड़ना है, तो हमें अपनी भाषाओं में साहित्य की रचना करनी चाहिए। अपनी भाषा का प्रयोग कम से कम हस्ताक्षर करने में जरूर करना चाहिए, वो एक शुभारंभ है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद।